Hello everyone. So I hope you have gone through with the linear queue. You have seen what are the different operations that we can perform in linear queue, as well as the structure of this linear queue. Everything you have gone already. We were having few drawbacks in that kind of linear queue, so that we need something else. We need some other kind of queue. So in this video, thoroughly we'll go through with the circular queue. Before going to continue the circular queue, I would like to tell you the drawbacks of linear queue first. Then we'll go through with this, circular queue. Then we'll see the operations that we can perform in, circular queue, as well as we will see what are the different application, real world application areas where we can use the circular queue. So let's start with the basic part, where we will see what are the drawbacks in linear queue. So here we have the example, and through which we will try to understand what was the issue actually. So you can see here we have the one simple queue. We can call it as a linear queue. Simple queue we have. So here, the size of the queue is nothing but the 5 maximum element that we can store in this linear queue, that is 5. And the front variable is pointing to the first location. It means this is the zeroth index position from which we can delete any data element. And here the rear point to the fourth index position. It means this is the area or portion, we can say that, through which we can insert a new element. Okay. तो हमेशा फ्रंट हमें ये बताता है कि भाई कहाँ से हमें एलिमेंट को डिलीट करना है, और रेयर हमको वो एंड बताता है जहाँ से हमें कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने अपनी लीनियर क्यू में सारे एलिमेंट ऑलरेडी फिल कर रखे हैं। ऑलरेडी सारे एलिमेंट फिल कर रखे हैं, तो अब कोई नया एलिमेंट तो इंसर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि रेयर ऑलरेडी हमारा मैक्सिमम साइज को हिट कर रहा है। और अगर रेयर ही वो एक ऐसा वेरिएबल है जो उस लोकेशन को होल्ड करता है जिस लोकेशन पे हम नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, तो जब हम रेयर को देखते हैं कि जब वो मैक्सिमम साइज -1 पे अगर पॉइंट कर रहा होता है, तो उसके बाद में हमारी क्यू की साइज ओवर हो चुकी है और इसमें हम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं एज पर दी प्रॉपर्टी ऑफ द linear queue. So here we'll try to perform the few operation, then we'll see whether this kind of operation is feasible or not. Okay, so here once I will try to insert a new element f again in this queue, so that's why we'll get the overflow message. Why? Because if rear is equals to max size -1, then finally we'll get the message like queue is already full, you cannot insert a new element in this queue. So that's why we'll get the overflow message. Now if let's suppose that we want to delete any element, I'm going to delete any element, so definitely front is pointing to zeroth location right now, so we can delete the element which is available at the zeroth index position, and that was a over here. So that's why this q delete operation will delete the element a from this place. So now this element has been deleted, और जब ये element delete हो जाएगा तो जो हमारा front variable है वो zeroth index position के बजाय first index position को point करने लगेगा as per the property. अब हमारा फ्रंट फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन को पॉइंट करने लगा, और हम आइडियली हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये पहली लोकेशन है ये फ्री हो चुकी है। अब यहाँ पे कोई एलिमेंट फिलहाल नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए हम एक बार फिर से इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी अभी तो हमने डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है। सो नाउ हियर वी विल वंस अगेन ट्राई टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट f in this linear queue. Once again we are getting this overflow. Why? Because the checking of the overflow situation is if rear is equals to max size -1, then what we will message, what kind of message we will display? Message will be like queue is already full, क्योंकि जो हमारा rear variable ऑलरेडी वो maximum size को hit कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्पेस खाली होने के बावजूद हमें मैसेज मिल रहा है ओवरफ्लो का। तो हम खुद ही समझ गए होंगे कि जो मेमोरी का यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो जो मेजर ड्रॉबैक था लीनियर क्यू में वो था इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था। इवन स्पेस खाली होने के बावजूद भी अगर हम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हम इंसर्ट नहीं कर सकते थे। दैट इज द मेजर ड्रॉबैक। इससे ओवरकम होने के लिए कुछ सॉल्यूशंस प्रपोज किए गए। चलिए अब उन सॉल्यूशंस पे बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से सॉल्यूशन हैं। तो पहले सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो पहला सॉल्यूशन जो मेथड 1 है उसमें ये किया जा सकता है कि जैसे ही कोई एलिमेंट को हम डिलीट करें,
तो उसके बाद के जितने भी एलिमेंट हैं उसकी हम शिफ्टिंग कर दें, जैसा कि हम बेसिक एरे में कर रहे थे कि जब भी एरे में हमें किसी पोजीशन पे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना पड़ रहा था या डिलीट करना पड़ रहा था, तो हम उसके एलिमेंट्स को शिफ्टिंग करते थे। तो ऐसे ही कुछ मैकेनिज्म यूज कर लिया जाए कि शिफ्ट कर दिया जाए सेल को। So after deleting element from the front, shift all the remaining element to the left. तो जैसे कि हमने यहाँ से A को डिलीट किया, तो A के डिलीट होने के बाद में B को शिफ्ट कर दिया 0 पे, नाउ C को शिफ्ट कर दें 1 पे, D को शिफ्ट कर दें 2 पे, E शिफ्ट हो जाए 3 पे। और ऐसा करने पे एक चीज जरूर है कि फ्रंट जरूर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि फ्रंट तो अभी भी वही का वही बना हुआ, फिर से वहां पे एलिमेंट हमने स्विच ओवर कर दिया है। लेकिन जो हमारी रेयर की जो वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे 4 पे पॉइंट कर रहा था रेयर, अब वो डिक्रीमेंट होकर रेयर जो हमारा वेरिएबल है वो थर्ड इंडेक्स लोकेशन को पॉइंट करने लगेगा। तो एक काम तो ये हम कर सकते हैं कि भाई हम शिफ्टिंग कर दें, हम जैसे डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करें उसके बाद में हम बाकी की जो रिमेनिंग एलिमेंट है उनकी शिफ्टिंग कर दें। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जो शिफ्टिंग है वो थोड़ा कॉस्टली है एंड टाइम कंज्यूमिंग है। अब कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग किस सेंस में आप कह रहे हो? लेट्स सपोज दैट हमारी क्यू की साइज अगर मान लीजिए मिलियंस एंड बिलियंस में होती, तो ऐसी सिचुएशन में हमको फ्रंट से एलिमेंट डिलीट करने के बाद में अगर हमारे पास में 1 लाख एलिमेंट भी है तो हमको 1 लाख एलिमेंट की शिफ्टिंग करनी पड़ती पहले। तो अगर यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है किसी एक सिंगल शिफ्टिंग में, तो 1 लाख यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है हर एक एलिमेंट की शिफ्टिंग। और ऐसा बार बार होता तब तब होता जब हमारे अगर हमें एलिमेंट्स को डिलीट करना होता है, यानी अगर हम कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे होते जहाँ पे हमको फ्रिक्वेंटली डेटा को डिलीट करने की आवश्यकता पड़ रही है, डेटा का इंसर्शन डिलीशन, इट मीन्स हम कोई एक डायनेमिक डेटा मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि रेलवे स्टेशन में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स एंटर किए, कितने रेलवे स्टेशन को फ्री मतलब वहां से अपनी टास्क कंप्लीट होने के बाद में बाहर गए। अगर ऐसा कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना चाह रहे हो और ऐसी जगह पे अगर हम टाइमिंग के हिसाब से कि कौन व्यक्ति पहले आया कौन कब गया, समथिंग लाइक दैट, तो ऐसी जगहों पे क्या है कि फ्रिक्वेंटली हम डेटा को इंसर्ट भी कर रहे होंगे और डेटा को फ्रिक्वेंटली डिलीट भी कर रहे होंगे। अब इस जगह पे अगर हम शिफ्ट सेल वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो चूंकि फ्रिक्वेंटली डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होंगे और फ्रिक्वेंटली डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होने की वजह से बार बार एवरी टाइम हमको एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उस पर्टिकुलर फ्रंट एलिमेंट के बाद में उनकी हमको शिफ्टिंग n-1, स्पेशली अगर हम बात करें तो n-1 एलिमेंट्स की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। सो यू कैन सी कि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होगी, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके बाद में प्रेजेंट है उतनी यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम, तो टाइम कंज्यूमिंग है। और जब भी हम प्रोग्रामिंग के सेंस में बात करते हैं कि टाइम ज्यादा लगने वाला है, स्पेस ज्यादा लगने वाला है, इट मींस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट एक्चुअली। कॉस्ट किस चीज से संबंधित होती है? एक तो आपने जितना समय दोगे, जितना समय का मतलब कि आप कोई एम्प्लॉय है किसी कंपनी का, अब तो अगर वो किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में ज़्यादा लंबा समय ले रहा है तो उतने दिनों की हमें उसे सैलरी पे करनी पड़ेगी, तो कॉस्ट इससे रिलेटेड होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिस्टम की कॉस्ट की बात करते हैं तो इट मीन्स क्या है, हमारा जितनी देर हमारा जो सीपीयू है वो किसी अदर टास्क को, अननेसेसरी टास्क को कंप्लीट करने में बिजी रहेगा, तो उतनी ही देर बाकी के जो प्रोसेस है, हो सकता है वो हायर प्रायोरिटी टास्क हो, लेकिन बाकी के जो प्रोसेस हैं वो होल्ड पे होंगी जब तक कि प्रोसेसर इस टास्क को कंप्लीट ना कर ले। तो चूंकि हम प्रोसेसर को अननेसेसरी टास्क में बिजी रख रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट टास्क है उसको होल्ड पे डालना पड़ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये कहते हैं कि जो हमारी कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा इन्वेस्ट होती है। तो शिफ्टिंग इज अ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, सो दैट दिस मेथड इज नॉट रिकमेंडेड। सीधे सीधे अपन इसको डिनाई कर सकते हैं कि ये मेथड तो वैल्यूएबल नहीं है, अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर हमारी जो क्यू की साइज काफी ज्यादा होगी तो वहां पे ये इफेक्टिव नहीं है। अब अगर ये इफेक्टिव नहीं है तो अगला कौन सा मेथड आप प्रपोज कर सकते हो? तो दूसरा जो मेथड प्रपोज किया गया वो था सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट, ओ आई एम सॉरी, सर्कुलर क्यू की बात हम कर रहे हैं, लेट मी करेक्ट इट फर्स्ट, मैं इसको करेक्ट कर दूं, सर्कुलर क्यू है एक्चुअली। ओके, तो जो दूसरा मेथड है वो है सर्कुलर क्यू। अब सर्कुलर क्यू का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि ठीक है, आपने ये पहले एलिमेंट को यहाँ से डिलीट कर दिया था, फ्रंट आगे बढ़ गया था और चूंकि रेयर यहाँ लास्ट पोजीशन को पॉइंट कर रहा था, तो आगे अब कोई अगला एलिमेंट इंसर्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रेयर की जो चेकिंग कंडीशन है वो रेयर इक्वल्स टू मैक्स माइनस मैक्स साइज -1 है, लीनियर क्यू की अगर हम बात करें। तो क्यों ना एक ऐसा कुछ लॉजिक डेवलप किया जाए कि ये जो हमारा लास्ट एलिमेंट है, ये जो लास्ट रेयर है, वंस अगेन कहाँ से स्टार्ट हो जाए, लेट सपोज दैट यहाँ हमारी साइज खत्म हो जाए, तो एक बार चेकिंग करे कि अगर यहाँ का कोई एलिमेंट डिलीट हुआ है तो रेयर फिर हमारा 0th इंडेक्स पोजीशन को पॉइंट करना चालू कर दे। तो एक तरह से हमने क्या किया कि एक सर्कुलर कॉन्सेप्ट को लेना चाह रहे हैं। सर्कुलर कॉन्सेप्ट कैसे
कि अगर हमने ठीक है इंसर्शन करते 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 लास्ट पे पहुंच गए और मान लो पहले एलिमेंट डिलीट हो गया, दूसरा डिलीट हो गया, तो रेयर वापस से कहाँ पे इंसर्शन करना चालू कर दे, बिगनिंग से करना चालू कर दे। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, काइंड ऑफ जो ये स्ट्रक्चर है वो सर्कुलर स्ट्रक्चर है कि जहां से आपने स्टार्ट किया वापस वहीं पे पहुंच गए फिर से। तो सर्कुलर स्ट्रक्चर है। तो ये सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट है। दूसरा मेथड प्रपोज किया गया कि भाई इसके थ्रू अपन सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अच्छा, इस सोल्यूशन में ये बेनिफिट हुआ कि जो अभी हमने प्रीवियसली देखा कि कोई ट्रेवर्सिंग करनी पड़ रही थी, तो कोई ट्रेवर्सिंग नहीं करनी पड़ी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट करना है कि भाई रेयर अभी अगर हमारा लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है तो हमको बस इतना कंपैरिजन करना कि भाई हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन है, जीरोथ इंडेक्स पोजीशन है, अगर उसका एलिमेंट डिलीट हुआ है, यानी कि फ्रंट अगर हमारा भी जीरोथ इंडेक्स पोजीशन को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली ये स्पेस खाली है, इसका मीनिंग है। और रेयर फिर वापस हमारी जीरोथ इंडेक्स पोजीशन पे पॉइंट करने के लिए एक छोटा सा कंपैरिजन करना है। इससे ये बेनिफिट हुआ कि वो जो अननेसेसरी की कॉस्ट बढ़ रही थी, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था ट्रेवर्सिंग करने में, उससे हम बच गए। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, वो जो ड्रॉबैक था लीनियर क्यू का कि भाई स्पेस खाली होने के बावजूद हम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर पा रहे थे, हमें मैसेज मिल रहा था कि क्यू हमारी ऑलरेडी फिल्ड है, तो हम इस ड्रॉबैक से भी ओवरकम कर जाएंगे इजी गोइंग वे पे सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट यूज करके। बट इट, अब सर्कुलर क्यू के कॉन्सेप्ट को ज्यादा बेहतर से समझने की कोशिश करें तो इन दिस मेथड यूजिंग द मॉड्यूलस ऑपरेशन। अब यहाँ पे बात देखिए इंडेक्स से थोड़ा सा ऊपर निकल चुकी है। अब हमको यहाँ पे एक्चुअल में हमें एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचना पड़ेगा कि अगर फोर्थ पे है तो उसको हमको वापस जीरो पे सेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे कुछ अलग से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली मॉड्यूलस ऑपरेशन का यूज करेंगे। अभी एग्जांपल अपन लेंगे तब समझेंगे कि कैसे इसका उपयोग होगा। या मॉड्यूलस ऑपरेशन का यूज करेंगे। एंड मॉड्यूलस ऑपरेशन आई थिंक आपने यूज किया होगा। सो वी कैन रीयूज द फ्रंट लोकेशन ऑफ द एरे टू स्टोर द फर्दर एलिमेंट्स ऑफ द क्यू। अब मतलब इस मॉड्यूलस ऑपरेशन के थ्रू हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम जो वो लोकेशन है जो फ्री हो चुकी है स्टार्टिंग से बिगनिंग से, हम उसको दोबारा रीयूज करना चाह रहे हैं। इससे ये बेनिफिट हमें यहाँ मिलने वाला है। This is achieved by the performing modulus operation whenever we insert an element and also when we delete an element from the queue। अब ये modulus operation का उपयोग हम कहाँ करेंगे, जब भी हम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे या जब भी कोई नया एलिमेंट हम डिलीट करने जाएंगे तो हमको इस मॉड्यूलस ऑपरेशन का यूज करना है। और इसके थ्रू हमें उस लोकेशन का पता चलेगा जो लोकेशन हमारी राइट नाउ फ्री है। उससे इस मॉड्यूलस ऑपरेशन से वो हमें हेल्प मिलने वाली है। गॉट इट। अब ड्यूरिंग इंसर्शन की अगर हम बात करते हैं तो मैक्स साइज 5 है। सपोज दैट ऑल द एलिमेंट्स आर ऑलरेडी फिल्ड, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी सारे के सारे एलिमेंट्स फिल्ड हैं हमारे। ड्यूरिंग इंसर्शन में कैसा होगा कि इनिशियली हमारी क्यू खाली होगी, फिर हमारे फ्रंट और रेयर दोनों जीरो पे सेट होंगे। देन इसके बाद में रेयर एंड पे हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे, फिर रेयर इंक्रीमेंट होगा, फिर रेयर इंक्रीमेंट होगा। इस तरीके से रेयर इंक्रीमेंट होते होते फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे पहुंचेगा, वहां एलिमेंट इंसर्ट कर देगा और फ्रंट हमारा जीरोथ लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब एक्चुअल में तो है वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन ही, लेकिन क्या रिप्रेजेंटेशन के इजी बनाने के लिए मैंने आपको सर्कुलर क्यू का स्ट्रक्चर यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीरोथ इंडेक्स पोजीशन को फ्रंट पॉइंट कर रहा है, फोर्थ इंडेक्स पोजीशन को रेयर पॉइंट कर रहा है। अब अगर यहाँ पे रेयर को हम आगे इसलिए नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि राइट नो जो फ्रंट है वो उसकी वैल्यू रेयर प्लस वन है। इट मीन्स अभी वो स्पेस खाली नहीं है। अभी देखेंगे वो कौन कौन सी सिचुएशन है, कैसे हम चेक करेंगे आगे फर्दर। इस पे अगर मैं प्रोसीड करना चाहूँ तो आगे अब अपन डिस्कस करेंगे कि इसके ऑपरेशंस देखते हैं कि इसमें सर्कुलर क्यू में कैसे कैसे क्या टास्क होती है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनको उनके थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं कि आगे कैसे इसमें अपन ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पे नाउ वी डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, देयरफॉर द 10 इज डिलीटेड फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू। अब हमने यहाँ से डिलीट करना चाहा, हमने एक एलिमेंट डिलीट कर दिया। ठीक है, फ्रंट को चेक किया कि अगर हमारा दो कंडीशन अपन चेक करते हैं कि कहीं क्यू हमारी खाली तो नहीं है। तो हमने चेक किया कहीं फ्रंट इक्वल्स टू -1 तो नहीं है। ऑब्वियस है, फ्रंट हमारा -1 पे नहीं था, जीरो पे था, तो इट मीन्स क्यू खाली नहीं थी। दूसरी हम कंडीशन चेक करते हैं कि कहीं ये सिंगल एलिमेंट तो नहीं है। तो यानी कि अगर हमारा फ्रंट और रेयर एक ही पोजीशन को पॉइंट कर रहे होंगे, इट मीन्स क्या होगा, देयर इज ओनली वन सिंगल एलिमेंट, वो भी नहीं था। तो सिंपल टास्क हम लीनियर क्यू के अकॉर्डिंग क्या करते थे, फ्रंट को इंक्रीमेंट कर देते थे, फ्रंट प्लस वन। तो दैट्स वाई फ्रंट जो जीरो पे पॉइंट कर रहा था वो फ्रंट कहाँ पे आ गया, फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट करने लगा और इस तरीके से ये एलिमेंट यहाँ से डिलीट हो गया। तो फ्रंट आ गया 1 पे और रेयर आ गया 4 पे। गॉट इट। तो अब यहाँ पे अगर आगे देखें तो नाउ वी इंसर्ट एन एलिमेंट 60। अब हमको एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं।
So we increment the rear by 1 and apply modulo to get the value of rear. अब अगर हम लीनियर क्यू का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे होते और रेयर को इंक्रीमेंट करते तो रेयर इक्वल्स टू रेयर प्लस 1, तो रेयर अभी राइट नो अगर फोर्थ इंडेक्स पोजीशन को पॉइंट कर रहा तो रेयर अब कहाँ चला जाता, फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन पे। लेकिन फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन तो हमारे पास है ही नहीं है क्यू में, रेयर को एक्चुअल में अब कहाँ पॉइंट करना चाहिए, जीरोथ इंडेक्स लोकेशन को पॉइंट करना चाहिए। So now if we want to insert the new element 60, so what we need to do, we need to increment the rear by 1 and apply the modulo to get the value of rear. अब modulo कैसे अप्लाई करेंगे देखिएगा, यहाँ पे ऑपरेशन थोड़ा सा चेंज हो गया, रेयर इक्वल्स टू रेयर प्लस 1। रेयर प्लस 1 क्यों, क्योंकि अभी रेयर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है हमको इसके बाद की लोकेशन चाहिए, क्योंकि उस लोकेशन में तो ऑलरेडी एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है। तो रेयर प्लस 1 नाउ मॉड्यूलो विद द क्यू साइज, क्यू की साइज के साथ में हम यहाँ पे उसके साथ मॉड्यूलो परफॉर्म कर देंगे। क्यू की साइज कितनी है एक्चुअल में, यहाँ पे क्यू की साइज है आपकी 5, यानी कि अगर 4 0 से 4 है तो इट मीन टोटल यहाँ जो क्यू की साइज है वो है 5। फाइन। अब हमको चूंकि 60 इंसर्ट करना है तो हमने क्या किया, रेयर को इस ऑपरेशन पे वैल्यू पुट की, तो रेयर राइट नाउ पॉइंटिंग टू 4, तो 4 प्लस 1 5, 5 मॉड्यूलो 5 क्या आएगा हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, वो हमारे पास बचेगा 5 मॉड्यूलो 5 पे 0। वही वैल्यू हम कंसीडर करेंगे किसके लिए, रेयर के लिए। तो रेयर जो अभी हमारा 4 को पॉइंट कर रहा था, अब रेयर किसको पॉइंट करने लगेगा, जीरोथ इंडेक्स लोकेशन को पॉइंट करने लगेगा। और इस तरीके से जीरोथ इंडेक्स लोकेशन पे आने के बाद में रेयर के मतलब क्यू के रेयर पे, अब ऑब्वियस है क्यू एक एरे है, तो क्यू के रेयर एंड पे अब रेयर क्या है, जीरोथ को पॉइंट कर रहा है, तो देख है कि क्यू की जीरोथ पोजीशन पे हमको कोई नया आइटम इंसर्ट कर देना है। और इस तरीके से नया एलिमेंट सपोज दैट हमने 10 इंसर्ट कर दिया, तो इस जो हमारी इंडेक्स पोजीशन खाली हो चुकी थी इस जगह पे हमने एलिमेंट नया फिर से इंसर्ट कर दिया। अब देखिएगा रेयर हमारा कहाँ पे आ गया, वापस 0 पे, और फ्रंट तो हमारा 1 पे ऑलरेडी था पहले से, जब हमने वो एलिमेंट यहाँ से डिलीट किया था तो फ्रंट हमारा 20 को पॉइंट कर रहा था। लेकिन रेयर कहाँ आ गया, 10 पे। अब आप ये कहोगे कि अगला एलिमेंट जब हम डिलीट करेंगे क्यू से तो वो 10 डिलीट नहीं हो सकता, चूंकि रेयर हमारा फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, तो सॉरी फ्रंट हमारा जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, तो जो अगला एलिमेंट डिलीट होगा वो 20 डिलीट होगा, ना कि 10। मतलब आप उसको इस तरीके से ना लें कि चूंकि अब पहला एलिमेंट तो 10 हो गया है, क्योंकि प्रॉपर्टी है कि हमेशा एलिमेंट बिगिनिंग से डिलीट होता है, तो चूंकि 10 हमारा बिगिनिंग नहीं है, 10 एक्चुअल में क्या है, सर्कुलर क्यू के कॉन्सेप्ट का यूज करके ये सबसे लास्ट एलिमेंट है एक्चुअल में, तो अगला जो डिलीशन है वो 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर 40 होगा, और इसी तरीके से जो इंसर्शन है वो 10 के बाद में जो खाली स्पेस उसको मिलते जाएंगे वहां पे इंसर्शन होता जाएगा। सिमिलरली वी कैन डिलीट दी एलिमेंट। अब डिलीट करना है तो अभी मैंने आपको एक सिंपल बता दिया कि फ्रंट को बढ़ाने का तरीका है फ्रंट प्लस 1, लेकिन फ्रंट प्लस 1 कहाँ तक काम करेगा, 4 तक काम करेगा। लेकिन अगर वही उसको अगला एलिमेंट डिलीट करना है, चूंकि अब रेयर तो हमारा जीरो पे आ गया, घूम के वापस डेटा फिर से यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो वापस फ्रंट को भी कहाँ आना पड़ेगा, जीरोथ इंडेक्स पोजीशन पे आना पड़ेगा। अब अगर ऐसे में हम फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 कर देते हैं तो फ्रंट चला जाएगा फिफ्थ पे, जबकि फिफ्थ पे नहीं जाके उसको 0 पे आना है। तो हम यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉड्यूलो क्यू साइज। और इस तरीके से अगर हमारा फ्रंट राइट नो फोर्थ पे है और उसको डिलीशन अब जीरोथ इंडेक्स पोजीशन का करना है, तो 4 प्लस 1 5 मॉड्यूलो 5, दैट्स व्हाई विल गेट 0। इट मींस फ्रंट विल आल्सो विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस जीरोथ लोकेशन। नाउ यू कैन डिलीट द एलिमेंट ऑफ द फ्रंट। गॉट इट? सो दैट वुड बी अ वे। तो आपने देखा कितने इजी गोइंग वे पे जो लीनियर क्यू का जो ड्रॉबैक्स थे उनको हमने यहाँ पे ओवरकम कर लिया सर्कुलर क्यू का यूज करके। Now let's go through with the basic operations that we can perform on a circular queue. So first operation basic is nothing but the insertion, insert into circular queue. Another is the delete from the circular queue, display the elements from the circular queue. So basically ये तीन बेसिक ऑपरेशंस तो आप डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स परफॉर्म करते ही आए हो, हाँ उनका तरीका अलग अलग है अकॉर्डिंग टू डेटा स्ट्रक्चर। इसके अलावा अंडरफ्लो और ओवरफ्लो भी दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। जब भी आप इंसर्ट करते हो या डिलीट करते हो आपको ये चेक करना ही पड़ता है कि अगर आपके कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो यू हैव टू चेक द ओवरफ्लो कंडीशन की वेदर द पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर इज फुल और नॉट। अगर ये वो फुल होगा तो definitely you cannot insert a new element, and whenever you are trying to delete any element from the any data structure you have to check out whether this data structure is filled with a single element or not. If there is no element, so definitely you cannot go through with the deletion operation. तो ये जो अंडरफ्लो और ओवरफ्लो है ये इम्प्लिसिट डिफाइंड होते हैं, किसमें, इंसर्ट और डिलीशन जो हमारी प्रोसीजर हैं उनके अंदर ही हम इनको डिफाइन करते हैं। तो पहली कंडीशन तो हम इन्हीं को चेक करते हैं जब भी हम इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जिनको हम देखेंगे।
उन बेसिक ऑपरेशंस को समझने से पहले मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेना चाहता हूँ। उस एग्जांपल्स में मैं कुछ फ्रिक्वेंटली ऑपरेशंस परफॉर्म करके आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से ये जो फ्रंट और रेयर वेरिएबल है वो अपनी पोजीशंस चेंज करेंगे, कैसे किसी नई पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट होगा, कैसे डिलीट होगा। तो जब हम इससे फैमिलियर हो जाएंगे तो हम उन ऑपरेशंस के जो लॉजिक है, जो एल्गोरिथम है, उसको भी आसानी से समझ सकेंगे, उसको आसानी से लिख सकेंगे। तो इनिशियली जैसे कि आप देख सकते हो, स्टेप नंबर वन हम बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारी जो इनिशियली क्यू है वो बिल्कुल एम्प्टी है, कोई भी एलिमेंट इसमें इंसर्टेड नहीं है। क्यू की जो हमारी साइज है वो 5 है यहाँ पे। तो इनिशियली चूंकि हमारी क्यू एम्प्टी है, तो दैट्स वाई फ्रंट और रेयर दोनों -1 को पॉइंट कर रहे होंगे, दोनों वेरिएबल। अब अगला स्टेप हमने किया कि हमको 4 एलिमेंट इंसर्ट करने हैं इसमें, ए बी सी डी और ई, इवन 5 एलिमेंट हमको इंसर्ट करने हैं। तो सबसे पहले जब ए इंसर्ट होगा तो फ्रंट और रेयर दोनों कहाँ सेट हो जाएंगे, 0 पे। इसके बाद जब बी इंसर्ट होगा तो रेयर इंक्रीमेंट होके आ जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे। इसके बाद जब सी इंसर्शन करना होगा तो रेयर फिर से सेकंड इंडेक्स पोजीशन को पॉइंट करेगा। फिर इसके बाद डी इंसर्ट करना तो रेयर फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा और थर्ड इंडेक्स पोजीशन को पॉइंट करने लगेगा। और फिर जब ई का इंसर्शन होगा तो रेयर फाइनली कहाँ आ जाएगा, फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे आ जाएगा, चूंकि हमारा ई के इंसर्शन के बाद में। अब एक एग्जांपल तौर पे आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अब कोई नया एलिमेंट अपन इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि रेयर मैक्सिमम साइज -1 को हिट कर रहा है। आगे चलते हैं। अब अगला जो स्टेप है कि इसमें हम ऑपरेशन ए को डिलीट करना चाहते हैं। अगर ए को डिलीट करना चाहते हैं तो ऑब्वियस हम कहाँ से डिलीट कर सकते हैं, क्यू के फ्रंट से, और फ्रंट वाज पॉइंटिंग टू 0th इंडेक्स लोकेशन, so definitely we can delete this a from here, so a will be deleted। अब चूंकि यहाँ से a डिलीट हो जाएगा तो फ्रंट अब नाउ विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन जिसपे कि b एलिमेंट स्टोर है। तो रेयर इज स्टिल एट फोर्थ इंडेक्स पोजीशन एंड फ्रंट इज नाउ स्टार्ट पॉइंटिंग टू द फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन। नाउ I'd like to insert a new element that is f over here। अब हमको अगर कोई नया एलिमेंट f इंसर्ट करना है तो ऑब्वियस व्हाट वी विल डू, हम करेंगे रेयर इक्वल्स टू रेयर प्लस 1 मॉड्यूलो साइज, मैक्स साइज। तो रेयर इज राइट नाउ पॉइंटिंग टू 4, तो 4 प्लस 1 5, 5 मॉड्यूलो 5, दैट्स व्हाई विल गेट 0। सो दैट्स व्हाई जो रेयर है हमारा वो वंस अगेन स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस 0th इंडेक्स लोकेशन एंड नाउ हियर वी कैन इंसर्ट द न्यू एलिमेंट f ओवर हियर। गॉट इट। तो इस तरीके से रेयर हमारा 0th इंडेक्स लोकेशन को पॉइंट करने लगा और जो फ्रंट वेरिएबल है वो हमारी फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन को तो ऑलरेडी पॉइंट कर ही रहा था, ये यहाँ पे एलिमेंट के डिलीट होते ही आपने देख लिया था। आगे चलते हैं। अब अगला जो ऑपरेशन है, लेट सपोज दैट ई, इसमें हम क्या कर रहे हैं, बी सी डी और ई को डिलीट करना चाह रहे हैं, यानी जो बाद के एलिमेंट थे यहाँ पे आपने देखा था, ये जो बाद के एलिमेंट थे बी सी डी और ई, इसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं। तो जब इसको, ये यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ जो टी नंबर स्टेप है, तो जब बी सी डी ई को डिलीट करना चाह रहे हैं, हमने डिलीट कर दिया। भाई डिलीट कैसे करेंगे, ऑब्वियस है, पहले तो फ्रंट पोजीशन बी को डिलीट किया, फिर फ्रंट कहाँ पे पॉइंट करने लगेगा, फिर उसके बाद में सी को पॉइंट करने लगेगा, तो दैट्स वाई सी डिलीट कर दिया। फिर फ्रंट इंक्रीमेंट होगा, डी को पॉइंट करने लगेगा, फिर फ्रंट इंक्रीमेंट होगा, ई को पॉइंट करने लगेगा। इस तरीके से हम सारे एलिमेंट डिलीट कर देंगे। और इन सारे एलिमेंट को डिलीट करने के बाद में आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा रेयर है वो तो 0 को पॉइंट कर ही रहा था, और फ्रंट भी अब किसको पॉइंट करने लगेगा, 0 को, क्योंकि अब नेक्स्ट जो डिलीशन है वो कहाँ से पॉसिबल है, इस 0th इंडेक्स पोजीशन से ही पॉसिबल, क्योंकि बाकी के जितने भी एलिमेंट वो डिलीट हो चुके हैं, फ्रंट लास्ट पे पहुंचा और लास्ट पे पहुंचने के बाद वापस सर्कुलर कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए 0th इंडेक्स पोजीशन पे आ जाएगा अगले डिलीशन ऑपरेशन के लिए। Now here we would like to insert a new element g and h again, so we will see this concept। So here we can see कि जो रेयर है वो पहले इंक्रीमेंट होके फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे आएगा, देन वी विल इंसर्ट जी, देन लेटर ऑन वंस अगेन रेयर इंक्रीमेंट होके एच सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे हम एच इंटर कर देंगे। नाउ इफ वी वांट टू डिलीट द एलिमेंट एफ जी एंड एच, सो हाउ इट वुड बी हैपन, पहले तो 0th इंडेक्स पोजीशन का एलिमेंट डिलीट हुआ, एफ डिलीट हो गया भाई, फिर फ्रंट पॉइंट करने लगेगा 1 को, फिर जी डिलीट कर दिया, फिर फ्रंट पॉइंट करने लगेगा 2 को, फिर एच डिलीट कर दिया। इस तरीके से ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे क्या हो गए, डिलीट हो गए। और डिलीट होने के बाद में जब हम ऐसा चेक करेंगे कि भाई हमारे सारे एलिमेंट डिलीट हो चुके हैं, तो वापस क्यू खाली हो गई, और क्यू खाली हो गई इसका मतलब हमको फ्रंट और रेयर को कहाँ सेट कर देना है, -1 पे वापस सेट कर देना है। गॉट इट। तो इतने ये बेसिक ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करके देख लिए कि जब भी कोई नया एलिमेंट डिलीट होगा तो क्या होना है, इंसर्ट होगा तो कैसे इन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होगी, ये सारे आपको मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इनकी जो एल्गोरिथम पार्ट है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं कि इंसर्शन ऑपरेशन आखिर परफॉर्म कैसे होता है, उसकी एल्गोरिथम हम कैसे लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी क्यू इंसर्ट से क्या क्या पैरामीटर पास किया हमने यहाँ पे, तो एक तो क्यू, जिसका क्यू नेम हो गया,
n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, देन सॉरी डिलीशन पे आ गए अपन, इसको पहले इंसर्शन पे लेकर आ जाएं वापस। इसके अलावा फ्रंट वेरिएबल है जो ये बताएगा फ्रंट कहाँ राइट नो पॉइंट कर रहा है, रेयर कहाँ पॉइंट कर रहा है, आइटम कौन सा नया इंसर्ट करना है। ओके, इंसर्शन से पहले क्यू की नॉर्मल प्रॉपर्टी पहले चेक कर लो कि कहीं क्यू फुल तो नहीं है, क्यू ऑलरेडी फिल्ड तो नहीं है। अब यहाँ क्यू के फील्ड होने की क्या सिचुएशन है? क्यू के फील्ड होने की पहली सिचुएशन तो ये है कि हमारा फ्रंट जो हो वो 0th इंडेक्स पोजीशन को पॉइंट कर रहा हो, लेकिन रेयर कहाँ हो? क्यू के साइज -1 पे, यानी कि मैक्सिमम साइज -1 पे हो। यानी इन दो पोजीशन पे अगर यहाँ पे फ्रंट हमारा 0th पे और जो रेयर है वो क्यू साइज -1 पे पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? क्यू फुल है ऑलरेडी। दूसरा एक और कंडीशन भी चेक की जा सकती है कि अगर फ्रंट की जो वैल्यू है वो रेयर +1 के इक्वल है। ऑब्वियस, अच्छा क्या है ये? तो तब की सिचुएशन है जब हमारा क्यू इस तरीके से फिल्ड हुआ हो कि फ्रंट अभी 0 पे है और रेयर हमारा 4th पे है। लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि राउंड एंड राउंड बढ़ने के बाद में फ्रंट आ गया हो 1 पे और वापस जो अगला इंसर्शन हो रेयर आ गया हो 0 पे, तब तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी और फिर हमको ये लगेगा कि नहीं भाई क्यू तो खाली है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है। तो ऐसे में हम इंसर्शन करने की कोशिश करेंगे, जबकि एक्चुअल में क्या है, रेयर वापस राउंड एंड राउंड सर्कुलर की वजह से आगे बढ़ चुका है। तो एक और कंडीशन चेक करें, दो में से कोई भी एक ट्रू हो जाए कि फ्रंट इक्वल्स टू अगर रेयर +1 पे है। अब फ्रंट सपोज दैट 1 पे है और रेयर हमारा 0 पे है, तो यहाँ पे फ्रंट जो है वो रेयर +1 के इक्वल होगा। तो ऐसी सिचुएशन को भी हम चेक कर लेते हैं और अगर ऐसा भी है इसका मतलब क्यू हमारी ऑलरेडी फुल है और हमको ओवरफ्लो का मैसेज पास करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको पॉइंटर ले लेता हूँ, पॉइंटर लेने से आपको समझाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो एक एग्जांपल लेके भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए जब तक अपन चलते हैं सेकंड नंबर वाले स्टेप पे। तो सेकंड स्टेप पे आप देख रहे हैं कि आपके लिए ठीक ओवरफ्लो नहीं है। अगर ओवरफ्लो नहीं है, इतनी समय पास में जगह खाली है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो ये देखना है कहीं हमारे क्यू जो है इसमें हम इनिशियली खाली तो नहीं है, पहला एलिमेंट तो नहीं इंसर्ट करने जा रहे। तो अगर फ्रंट इक्वल्स टू हमारा -1 के है, इसका मतलब क्या है? क्यू ऑलरेडी खाली है, इसमें हम फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहे हैं। और फर्स्ट एलिमेंट कैसे चेक करते हैं कि फ्रंट इक्वल्स टू -1 के? तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? फ्रंट और रेयर को दोनों को उठा के 0 पे लाकर सेट करना पड़ेगा और इसके बाद में हम फिर क्यू के रेयर कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट कर सकते हैं। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा? रेयर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। कैसे इंक्रीमेंट करेंगे? रेयर इक्वल्स टू रेयर +1 मॉड्यूलो क्यू साइज। अब यहाँ पे अगर एक खाली है तो भी अपन ने सेट कर दिया और नहीं है तो फिर अपन ने रेयर को इंक्रीमेंट कर दिया। फाइनल स्टेप क्या है कि आपको जो इंसर्शन करना होता है वो क्यू के रेयर एंड पे करते हैं, क्यू के रेयर हम को यहाँ आइटम इंसर्ट कर देंगे। इस तरीके से आपका इंसर्शन टास्क परफॉर्म होता रहेगा। अब मैं कहता हूँ कि राइट नाउ मैं एक एक करके सारी कंडीशन पे बात करता हूँ। तो इनिशियली क्यू खाली है वो तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे अभी जो हमारे पास सिचुएशन है कि हमारा जो फ्रंट है वो राइट नाउ पॉइंट कर रहा है 0 लोकेशन को, लेट सपोज दैट ये फ्रंट यहाँ पॉइंट कर रहा है और जो रेयर है वो पॉइंट कर रहा है 4 को, फ्रंट पॉइंट कर रहा है 0 को। ये हमने ये सिचुएशन लेके रखी है। आप कोई नया एलिमेंट है, सपोज दैट हम 60 इसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं, गॉट इट? 60 को इंसर्ट करना है। चेकिंग होगी सबसे पहले क्या फ्रंट इक्वल्स टू 0 पे है, यस, एंड रेयर क्यू साइज -1 पे है, यस ऑफ कोर्स। तो क्या आएगा मैसेज कि क्यू ओवरफ्लो है, कोई इंसर्शन नहीं हो सकता। चलो हम इसको खाली कर देते हैं, यानी यहाँ पे 50 नहीं है इंसर्ट हो। अभी रेयर जो पॉइंट कर रहा है वो सब थर्ड लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, यहाँ अभी पॉइंट नहीं कर रहा। मैं इसको यहाँ पे लेके चलूँ कि रेयर करके पॉइंट यहाँ पे कहाँ कर रहा है? थर्ड डायरेक्शन को कर रहा है। फिर चेकिंग करते हैं, अब कोई नया एलिमेंट 60 सेट करना है तो क्या फ्रंट इक्वल्स टू 0 पे है? यस है, चलो कोई बात नहीं। एंड रेयर इक्वल्स टू क्यू साइज -1 पे है? नहीं भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर और ये भी इसको भी चेक कर लो, क्या फ्रंट इक्वल्स टू रेयर +1 है? तो रेयर +1 हो जाएगा, फ्रंट राइट नाउ 0 पे, ये सही नहीं है। इसका मतलब स्पेस खाली है। स्पेस खाली तो हमने फिर से चेकिंग की, क्या फ्रंट -1 के इक्वल, यानी सॉरी क्यू हमारी खाली तो नहीं है? क्यू भी खाली नहीं है। अगर क्यू खाली नहीं तो फिर हम कहाँ जाएंगे? सीधे सीधे रेयर को इंक्रीमेंट करने पे जाएंगे और रेयर को हम इंक्रीमेंट करेंगे तो आप देख सकते हो ये है रेयर इंक्रीमेंट का जो लॉजिक है, रेयर इक्वल्स टू रेयर +1 क्यू साइज।
तो रेयर प्लस 1 किया हमने, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 मॉड्यूलो क्यू साइज, तो 4 मॉड्यूलो 5 करते हैं अपन, तो रेयर आपका पॉइंट करने लगेगा, फोर्थ लोकेशन को पॉइंट करने लगेगा, और क्यू रेयर यानी क्यू के फोर्थ लोकेशन पे हम आइटम इंसर्ट कर देंगे, और इस तरह से क्यू रेयर पे यहाँ पे हम 6 इंसर्ट कर देते हैं। ये होती है एक सिचुएशन। एक सिचुएशन हम ये लेते हैं कि सपोज दैट हमारा यहाँ पे 50 ऑलरेडी फिल्ड है, मतलब रेयर हमारा इसी को पॉइंट कर रहा है, फोर्थ पे ही है, और ये हमारा जो फ्रंट है वो इस एलिमेंट को डिलीट करने के बाद फ्रंट हमारा फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट करने लगा, तो फ्रंट यहाँ पे आ गया। अब अगली काम देखते हैं कि इस तरीके से क्या होगा कि अब कोई नया एलिमेंट फिर से हमको 60 इंसर्ट करना है, फिर से चेकिंग किया क्या फ्रंट इक्वल्स टू 0 पे है, नहीं है, तो ये कंडीशन तो हट गई। अब आती है बात फ्रंट इक्वल्स टू रेयर प्लस 1 पे है, ये भी नहीं है, ये वाली बात कट गई, क्योंकि रेयर तो राइट नो 4 पे और फ्रंट राइट नो 1 पे है। चेक किया क्या क्यू खाली तो नहीं है, ये भी नहीं है, जाएंगे सीधे रेयर को बढ़ा देंगे। रेयर को कैसे बढ़ाएंगे, 4 + 1, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 मॉड्यूलो 5 कितना हो जाएगा आपका 5 मॉड्यूलो 5 की अगर बात करते हैं तो 5 मॉड्यूलो 5 इज इक्वल्स टू 5 मॉड्यूलो 5 इज इक्वल्स टू 0। तो राइट नो हमारा इंडेक्स है, अब वो पॉइंट करने लगेगा किसको, सॉरी जो हमारा रेयर है, अब वो पॉइंट करने लगेगा 0th इंडेक्स पोजीशन को। अब यहाँ पे हम कोई एलिमेंट्स लेट्स सपोज दैट ये हमने 60 यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, गॉट इट। तो इस तरीके से ये टास्क पूरी चलती रहती है और आइटम इंसर्ट होता रहता है, वापस फ्रंट यहाँ आ जाएगा, तो फिर वापस फ्रंट अगला जो है, जब डिलीशन की बात करेंगे, अभी हम डिलीशन नहीं अभी इंसर्शन की बात करेंगे, इस तरीके से एलिमेंट इंसर्ट होते जाएंगे। और अगर ऐसी सिचुएशन है, चलो अभी से एक एलिमेंट 70 को इंसर्ट करना चाहते, फिर से चेक किया क्या फ्रंट इक्वल्स टू 0 पे है, नहीं भाई ये कंडीशन तो हट गई, इधर देखते हैं फ्रंट इक्वल्स टू रेयर प्लस 1 पे है, तो फ्रंट राइट नाउ 1 पे है और रेयर है 0 पे, तो 0 + 1 = 1। यस ऑफ कोर्स इट इज ट्रू, तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे ओवरफ्लो का मैसेज पास कर देंगे, नया कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ओके। अब जल्दी चलते हैं हम किसमें डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म करके देखते हैं कि डिलीशन ऑपरेशन कैसे काम करेगा। डिलीशन ऑपरेशन को भी करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो ये चेक करना कि भाई हमारा कोई एलिमेंट हमारी लिस्ट है वो खाली तो नहीं है, हमारी क्यू खाली तो नहीं है। अगर क्यू खाली नहीं है तो कैसे है उसकी चेक करने की कंडीशन, अगर फ्रंट इक्वल्स टू -1 क्या इसका मतलब क्या है, अंडरफ्लो है, यानी कि हमारी जो क्यू है वो खाली है। अगर ऐसा नहीं है, हमारा क्यू खाली नहीं है, तो हम पहले क्या करते हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं उस पर्टिकुलर आइटम को जो हमको डिलीट करना हो। डिलीट कहाँ से होना है, फ्रंट से डिलीट होना है। तो राइट में एक एग्जांपल जो यहाँ पे है, फ्रंट यहाँ पॉइंट कर रहा है और रेयर फोर्थ को पॉइंट कर रहा है, तो हमने जो क्यू का फ्रंट एंड को स्टोर कर दिया टेम्परेरी वेरिएबल में। अब हमको देखना है कि कहीं हमारा जो क्यू है उसमें कोई सिंगल एलिमेंट ही तो नहीं बचा हुआ। अगर सिंगल एलिमेंट बचा है इसका मतलब फ्रंट और रेयर क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में, और इक्वल होने का मतलब क्या है कि उस सिंगल एलिमेंट को डिलीट करने के बाद में फ्रंट और रेयर दोनों को -1 पे सेट कर दीजिए। और अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियस आप क्या करोगे, फ्रंट को इंक्रीमेंट करोगे। कैसे करोगे, फ्रंट राइट नाउ 0 पे है तो 0 + 1 1 below 5, दैट्स व्हाई नाउ फ्रंट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस फर्स्ट लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन। तो अगर फ्रंट यहाँ पॉइंट करने लगेगा फर्स्ट लोकेशन, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एलिमेंट है वो अपने यहाँ से डिलीट हो गया है, गॉट इट। तो ये सिंपल बेसिक डिलीशन ऑपरेशन वी हैव सीन कि हाउ वी कैन परफॉर्म द डिलीशन ऑपरेशन इन सर्कुलर क्यू। Let's talk about the application areas where we can use this circular queue. So traffic light signal सभी ने देखा, ट्रैफिक लाइट सिग्नल में क्या होता है कि ग्रीन लाइट है, येलो लाइट है, रेड लाइट है, वो क्या सर्कुलर वे पे जलती रहती है। So traffic light functioning is the best example of the circular queue. The color in the traffic light flown in a circular pattern. एक करने के बाद में कभी ऐसा नहीं होता है कि रेड के बाद अचानक ग्रीन आ जाए फिर कभी येलो आ जाए, तो वो एक सर्कुलर पैटर्न पे चलते हैं। तो वहां पे भी जो लॉजिक यूज होता है वो सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसके अलावा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे होगे या पढ़ोगे तो उसमें आप पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम देखो। क्या होगा कि जब प्रोसेसर प्रोसेस करने के लिए कोई डेटा इनपुट लेता है तो वो सेगमेंट पेजेस के फॉर्मेट में वो प्रोसेसर को डेटा प्रोवाइड किया जाता है। तो वहाँ पे मतलब राउंड रॉबिन ऑर्डर पे वो पेज रिप्लेस होते हैं। तो मल्टीपल क्या है, जो होल डेटा है वो मल्टीपल पेजेस में कन्वर्ट हो जाता है और वो क्यू में सेट जाता है। फिर एक एक करके वो पेजेस प्रोसेसर को दिए जाते हैं, फिर उसमें कुछ टास्क परफॉर्म होता है, फिर वापस आके वो क्यू के बैक साइड में हो जाता है। फिर से इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है, क्योंकि राउंड रॉबिन ऑर्डर में क्या होता है, प्रोसेसर हर एक प्रोसेस को, हर एक पेज को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देता है एग्जीक्यूशन के लिए। अगर उतनी देर में उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ तो ठीक है, तो दोबारा उसका पेज नंबर आएगा। ओके, तो जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है वहाँ पे भी हम सर्कुलर क्यू का लॉजिक यूज किया जाता है। तो दीज आर द टू बेसिक रियल वर्ल्ड एग्जांपल वेयर वी कैन यूज दिस सर्कुलर क्यू डेटा स्ट्रक्चर।
And definitely there would be a certain limitations, certain drawbacks. So that's why we have the one more another kind of queue. We'll discuss later on, and we'll see over there what kind of drawbacks we have in circular queue. So how can we overcome in the next one? Everything we'll see. So if you have any query in this part, so you can drop your query whenever we'll have live class. So we'll discuss all of them. So thank you everyone.